click here on this control palette, I will see these. सर हेलो Yes, yes. सर आप इसे रिपीट करेंगे दोबारा से अरे Okay, array is a collection of data. Like there can be situation जहाँ पे we need to generate let's say readings, okay, of same thing. Like if I'm doing one experiment in a lab, okay, like normal IV characteristic कर रहे हैं हम लोग. So if I generate, I know V का value, I'll change V value, and accordingly some I value will come. So I know is the same kind of data. I can put it inside a single structure called array. Okay, so basically what I'm doing, I'm collecting all the I values and putting them in a single structure, so that whenever I need them, I can just access this single array. I don't have to access all these values separately. So everything is in a single place only. So that is where arrays are useful. Okay, we put every the similar kind of data in a single structure. Okay, so it is also zero indexed. That also I'll explain you later on. But right now, just see how we can use array in LabVIEW. Okay, so it is again our plain blank VI. If I right click on my front panel here, you see this under control palette, you will see this array matrix cluster. Okay, so you see array is here. So let me just select it. Okay, so now I will drop it here. Okay, so you see what is the color of this array on the block diagram? What's the color here? Black color. What sort of data it represents? Can anyone tell? We have seen all sort of data type in LabVIEW. Which one is this? This is actually no data type. Right now we have not defined anything. Even if you see our loops also, we did shift register yesterday. If I place one shift register here, initially it is also black. Okay, why? Because it is not initialized as of now. It is basically a structure which can adapt any type of data. This is also the similar type of structure which can accept any kind of data. Then array is also a structure that can take any kind of data. So it initially it would be black color only. Okay, so this process only we called polymorphism. Okay, which basically says that any function or any structure can basically adapt to any data type which has been given to it. That is called polymorphism. So let's say if I take this integer i32, connect it here, you see it changes to blue, which means it has adapted to i32 now. So let's say what I do, but there's nothing to connect here. There's an output terminal, which obviously I cannot connect to this thing because it's not logically right. Okay, so how basically I can initialize my like इस केस में तो हम लोगों ने क्या करा, we just connected a wire. ठीक है, तो it became it adapted that data type. Let's say if I take a string constant, okay, and I connect it here, so it basically adapts to that particular string. Okay, so it is polymorphic in nature, but I cannot connect anything here. Okay, so how do I initialize this to, let's say, string, or let's start with the floating number. Okay, let me take this floating number. Okay, so let's say if I have to initialize my array for a floating point number. Okay, so what I'll do, I'll take one floating point control. Okay, I'll drag it inside this box. Now as soon as this boundary becomes like this dotted square, I will drop it, and you see it has changed to orange, because what I did, I basically dropped one floating point number inside it. Okay, so I can now just drag it. You'll see all these values are there. So let's say if I give this particular index some value, so all the above will be initialized with 0. Okay, we can just simply increase or decrease these things.
Okay, now it is an array of floating numbers, 32-bit floating numbers. I can use it in any way now. Okay, so now what we will see some basic array functions. Let's say now I know how to initialize the array. Okay, let me just initialize this array for, let's say, I32 also. Let me change this to I32. Okay, so if I drag this control inside this, so you see it has become blue in color. So this is also polymorphic in nature. Okay, so let me just add some value here also. So if I give it minus 5, okay, it will take 1 second. Right now I'm giving some random values here so that we can just try to see manipulate these two. Okay, so now what I'll do, there are many functions that can be used in for array. Okay, we can try to manipulate all of them. Okay, so obviously these are function, we will find them on block diagram. Okay, so what I'll do, let me just put them aside and right click on my block diagram. Under function palette you see this array. So if I open array, let me just pin it here, control H. Now you see this, what this function does: return the number of elements in each dimension of array. Okay, basically it tells me how many numbers are inside the array. Then this return the element or sub array of n dimension. So what it will do, basically I'll connect an input array and then I will give it one index. It will just take that number out of from let's say if I have connected this array and if I give index equals to 0, like here, then what it will do, it will give me this -1 as an output. If I give index equals to 1, then it will give me -4. So basically it helps me extracting one particular element out of the array. Okay, then if you want to replace some element, you can use this one. Okay, same thing, you just give input array, give your index number and give the new element to replace it with, so it will replace that. Then there are multiple arrays, so let us try to manipulate a few of those. Okay, so let's say first of all we'll see array size. Let me just drag it here. Okay, so what I will do, I will just connect it here. Let me connect this. Okay, so what I now output I have to see. One thing is I go on the block diagram, go under numerics, put a control. Okay, and then connect this control to this output. Okay, obviously it is giving integer and it is a floating point number, we can change it. Okay, so this is one way to connect one indicator. Otherwise I just go here on the terminal, right click, under create indicator, it will automatically take this. Okay, so if I now run it, you see it is giving me 10. That means there are 10 elements in this particular array. This array is this one. So if we count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so it is giving me the size of this element, this array. Any doubts in this? Okay, so we'll see some other functions also. Let's say yesterday we saw some conversion also, like if I want to convert my data from integer to floating point or otherwise also. So there are some functions under numeric for conversion. Okay, so like if I want to convert my data to 32-bit number, so this is what I will use. So this is I32. Let's say I wanted to I want to convert it
to DBL, which is 32-bit floating number. So I can use this particular function. Now I have in output I will receive my 32-bit in floating point numbers. Yeah, if I run the program here, you see it has been initial. Let us give some space here. Okay. So right now you're seeing only two, -2. Like you can see -2 here and -2 here, but nothing else is here. So if I move this cursor, you will start seeing other numbers also. Okay, so or other thing is I can just expand it like this. Okay. So now it has been converted. You can see this color change here. Okay. Then let's say if I want to do some other functions, let's say index array. Now what this function does, give me one particular element out of this array. So what I will do, I will connect this as an input, and I will let's say take one control. Instead of giving one constant number, I will give it a control so that I can change it. And let me just put it inside a while loop so that we can continuously monitor the changes. Okay, and while loop we obviously need to define a control for stopping it. Then we will time it also. Okay, let me add a constant of 100 millisecond delay we will put. Okay, so if I now run the program, okay, 1 second, I didn't connect any indicator here. Okay, so this would be the element that we have selected. Now if we run the program, see right now 0 index is what we have selected, and 0 means -2 is coming out here, you can see. Now let's say if I make it 10. See, what is 10? 10 right now is not here. If let's say I make it 9, 9 is 76. But you would say, okay, there are 10 elements, this should be 10th element. Why it is giving 0 on 10? Yes, if I give it 10, it is giving 0. But this is the 10th element. We are doing something wrong or what? Is there any error? Because 10th element is this one. Okay, but on 10 it is giving me 0. On 9 it is giving me this 76. What could be the issue? Can anyone guess? सर वो दोबारा से स्टार्ट हो गया। वो आपने 0 से 9 तक किया, वो पूरा 10 कवर किया, फिर 10 से दोबारा स्टार्ट हो, इसलिए वो 0 आ रहा है। तो मतलब वो 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि वो 0 से 9 तक क्या आ सकते हैं ना हमारे पास वैल्यू। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं लेट्स से अगर इसके अंदर 10 एलिमेंट हैं और मैं इंडेक्स में इसे 100 दे देता हूँ, वो 0 दिखाएगा, क्योंकि इसके आगे जितना भी इंडेक्स है अगर मैं कोई सेलेक्ट करूँगा तो वो 0 बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिखाता है। बट इसके पास वो एलिमेंट है नहीं। बट व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज समथिंग डिफरेंट। ये 10 पे हमें 0 दिखा रहा है और ये 9 पे हमें 76 दिखा रहा है, जबकि मुझे पता है 76 हमारा 10th एलिमेंट है। सर वो इंडेक्स तो नंबर तो 9 ही होगा ना, 1 का कम होगा हमेशा, -1 इंडेक्स वो 0 कम होगा, 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। नहीं, इंडेक्स 1 कम होता है ना, 0 से स्टार्ट हो गया जैसे हमारा, ये 0 इंडेक्स है ये भी, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 4 ऐसे करके, तो इसलिए ये 10 नहीं है, 10th ये वाला एलिमेंट होगा। तो लेट्स से अगर मैं 11 डालते हैं यहाँ पे, लेट्स से यहाँ पे भी 11 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो आ गया, और अब मैं इसको 10 करता हूँ तो यहाँ देखो 11 आ गया अबाउट, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। समझ में आया ये? ओके, तो अब कोई और सा एक फंक्शन लेके देखते हैं हम। लेट्स से
रिप्लेस करना हो अगर एरे में कुछ, या फिर इंसर्ट करना हो, जैसे इंसर्ट करके देखते हैं अब। ठीक है, रिप्लेस और इंसर्ट में डिफरेंस है। रिप्लेस मतलब मैंने एक एलिमेंट, एक इंडेक्स लिया, उस पर जो भी डेटा था उसको चेंज करके मैंने कुछ नया वैल्यू डाल दिया। इंसर्ट का मतलब क्या है, मैंने एक नया एलिमेंट डाल दिया एक नए इंडेक्स पे, सो वो नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हो जाएंगे उस केस में। ठीक है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इंसर्टिंग एंड replacing. Okay, so let us give this particular array only. Then index, let me use this one. यहाँ से डिलीट करते हैं, then new element we have to give. तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा okay, so let me just run this program. You see यहाँ पे हमने इंडेक्स सेलेक्ट करा हुआ था 10, अब नया एलिमेंट था 0, तो इसने क्या करा 76 के बाद एक 0 इंसर्ट कर दिया, और जो उस पर एग्जिस्टिंग एलिमेंट था 11 उसको एक आगे खिसका दिया। तो सिमिलरली मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, लेट्स से 11 पे 0 कर दिया। 12 इंडेक्स तो खैर ही नहीं इसमें, तो ये देखिए इसमें कुछ भी नंबर हम चेंज कर सकते हैं, जैसे 16। ठीक है, तो ये हमने इंसर्ट किया है इसके अंदर नया एलिमेंट। सिमिलरली हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं, या फिर अगर डिलीट करना हो एरे के अंदर से कुछ, इनिशियलाइज करना हो एरे को, एरे सबसेट मैक्सिमम और मिनिमम, लेट्स से ये वाला एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें ये क्या करेगा, मेरे एरे में से मैक्सिमम और मिनिमम जो भी नंबर है, ये पूरा जैसे लिस्ट है -2 से मेरा 11 76 सारे नंबर है, तो इसमें क्या करेगा, ये मेरा सबसे मिनिमम नंबर जो है वो निकाल लेगा, वो और उसका इंडेक्स मुझे दे देगा, और मैक्सिमम नंबर और उसका इंडेक्स मुझे दे देगा। तो एक बार करके देखते हैं इसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये है, ये वाला एरे है हमें पता है, तो एक बार रन करके देखते हैं। तो इसमें मैक्सिमम हमें पता है 76 है, और उसका इंडेक्स क्या है 9, वो हमें दिख रहा है मैक्सिमम इंडेक्स। ठीक है, और हमारा मिनिमम नंबर क्या है इसके अंदर -6, इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3, तो वो भी दिखा दिया इसमें। ठीक है, तो ये फंक्शंस दे हेल्प अस in manipulating any array, so that if we are dealing with any group of numbers, we can number or strings or any data type, we can easily manipulate them. Okay, so आज का एक एक्सरसाइज रहेगा कि आप जितने भी इसके फंक्शन हैं सबके ऊपर सबका एक्सप्लेनेशन मुझे देंगे, एक एक वी बना के दिखाएंगे आप, जितने भी इस फंक्शन है सारे, जैसे मैंने अभी आपको 2-3 का दिखाया ना, आप सबका मुझे एक्सप्लेन करेंगे कल। सो दिस इज वन ऑफ योर वी आई, वन ऑफ योर होमवर्क। सो लेट मी जस्ट डिलीट दिस होल थिंग। Okay, so this was 1D array. Okay, now there is something called 2D array also. Okay, so like 1D array में हमारे पास let's say x एक्सिस पे के ऊपर ही था, यहाँ पे हमारे पास x और y दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास ये मैट्रिक्स टाइप का एक ब्लॉक बन जाएगा, जहाँ पे फिर इंडेक्स भी हमारा होगा 0 0, जैसे 0 0 मतलब ये, 0 1 मतलब ये, फिर 0 2 मतलब ये, देन 1 0 ये, 1 1 हो गया ये। तो इस टाइप से हम उसे भी कर सकते हैं यूज़। तो लेट्स से अगर मुझे 2D एरे यूज़ करना है तो मैं सेम काम करूँगा, एरे सेलेक्ट करूँगा, इसको इनिशियलाइज करूँगा नंबर पे। ठीक है, देन यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे हम, ऐड डायमेंशन। ठीक है, तो अब हम अगर इसे एक्सपेंड करते हैं, ये देखिए ये ऐसा आ गया।
अब मैं यहाँ पे आके इसे कुछ नंबर देता हूँ, इससे पहले वाला सब इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका साइज हम मेजर करके देखते हैं। Did you see some difference here? जब हम 1D array यूज कर रहे थे और 2D array अब यूज करें, कोई डिफरेंस दिख रहा है? लेट्स से मैं एक 1D array आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। 1D array, ये एक 1D array है और सेम एक फंक्शन मैं यहाँ भी लेता हूँ, तो यहाँ अटैच करते हैं, देन एक इंडिकेटर इससे भी लगा देते हैं। कैन एनीवन टेल एनी डिफरेंसेस? तो डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों में, 1D और 2D में? यहाँ तो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा है? कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। Can anyone tell if there is any difference? या सर वो उसका एड्रेस बताएगा सर। नहीं, मैं एड्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ दिखने में बात कर रहा हूँ। सर साइज मेजर करते टाइम एक एक्स्ट्रा ब्लॉक लेफ्ट साइड में आ रहा है 2D array में। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे आप यहाँ देखिए, ये वाला जो है हमारा इंडिकेटर, ये वाला एक सिंगल नंबर है, जबकि ये वाला जो इंडिकेटर है, दिस इज एन एरे, 1D एरे। ठीक है, और इवन आप यहाँ देखिए, सबसे पहले वायर, ये वायर है, ये सॉलिड मतलब थोड़ा थिक ऑरेंज कलर का वायर है, बट ये वायर जो है 2D का, ये दो थिन वायर पैरेलल में जाते हुए लग रहे हैं। यस, यस सर। so this is another differentiation block diagram पे, graphical difference that you can see। तो अगर 1D array है तो थिक लाइन जाएगा ऐसा, 2D array है तो ये आपका जाएगा ऐसे टू थिन लाइंस रनिंग इन पैरेलल। लेट्स से अगर मैं रिप्रेजेंटेशन चेंज करके देखूँ इसका इंटीजर पे, तो भी सेम है। ठीक है, मतलब कलर चेंज हो जाएगा बट इट विल रिमेन सेम, दो थिन वायर पैरेलल में जाएंगे। ओके, सो ऑब्वियसली इसका जो साइज होगा एरे का, वो होगा लाइक 4x4 समथिंग लाइक दैट। तो 4x4 दो एलिमेंट है, तो वो एरे में जाएगा, 1D एरे में, क्योंकि यहाँ पे एरे ही 1 है, मतलब 1D है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, से 10 5 ऐसा होगा, तो सिंगल नंबर आ रहा है। बट यहाँ पे हमारे पास एक रोज है और एक कॉलम्स हैं, तो ये हमें दोनों के बताएगा, लाइक नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है। ठीक है, तो इफ आई रन दिस प्रोग्राम, now you can see 7x4 is the size of this element, like 7 is your rows, number of row, 4 is your number of column। ये जो है अभी ये 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने इसे इनिशियलाइज कोई नंबर नहीं दिया। लेट्स से मैं यहाँ 0 डाल देता हूँ, अभी साइज दिखा रहा है 6। ठीक है, तो सिमिलरली अगर मैं लेट्स से यहाँ पे भी इसको 0 कर देता हूँ, अब देखिए यहाँ पे साइज चेंज हो गया इसका। ठीक है, तो 2D का जो साइज आएगा वो 1D में आएगा, और 1D का जो साइज आएगा वो सिंगल न्यूमेरिक नंबर में आएगा। तो दैट इज वन डिफरेंस जब आप 2D और 1D एरे में वर्क करेंगे। तो जो सेम हमने फंक्शंस देखे थे सारे, ये सेम एज इट इज वर्क करेंगे इस पे भी। ठीक है, जैसे इस वाले के केस में, जैसे हमने क्या, ये वाला क्या कर रहा था फंक्शन हमारा, कि मैं इसको एक ये देता था इनपुट एरे, एंड आई वाज गिविंग इट वन इंडेक्स नंबर, और ये उस इंडेक्स का एलिमेंट मुझे ड्रॉ कर निकाल के दिखा रहा था। इस केस में मैं इंडेक्स कैसे दूंगा, मतलब हमारे इसके केस में, इस वाले एरे के केस में इंडेक्स था लाइक 0 1 2 3। इसके केस में इंडेक्स कैसे होगा, लाइक 1x3। अगर लेट से मुझे ये वाला एलिमेंट लेना है, तो इसका इंडेक्स क्या है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। यस, तो यहाँ पे मैं 1x1 दूंगा। तो इफ यू सी, यहाँ पे इसने अब 2 दे दिए, है ना। जनरली ये पहले 1 दे रहा था,
यहाँ पे एक टर्मिनल था, अगर मैं इस पे कनेक्ट करता हूँ इसे तो यहाँ पे एक ही टर्मिनल है इंडेक्स का, बट यहाँ पे अब देखिए रो है और फिर कॉलम है, तो मुझे रो और कॉलम दोनों का वैल्यू देना पड़ेगा, और ये आगे वो सब एरे निकाल के दे देगा मुझे। ठीक है, एनी डाउट? तो दिस इज दी ओनली डिफरेंस जब आप 1D और 2D में काम करेंगे फंक्शन मतलब नोड्स वाइज। जहाँ पे आप 1D में सिर्फ एक इंडेक्स दे रहे थे, वहाँ आप 2D में रो और कॉलम दोनों मेंशन करेंगे। So if there is no doubt, we'll move forward. Like this is the process how to initialize that we have seen. Some common array functions that we also saw. Polymorphism also we saw, like it is the ability of any function or a VI to adapt to the input data type. Auto indexing I will tell you, like we were doing in this program. Okay, so let's say let me just disconnect this particular let me disconnect this also. Okay, so if I connect it now here, you see what is happening in this case. I'm not here. Okay, so you see one thing, what error it is showing. Let us check that you have connected two terminals of different type, like that. The type of the source is 1D array of double 64-bit numbers, and the type of the sink is a double sink number. Basically what it is saying, ये जो source है, that means ये terminal, it is giving 1D array. Okay, but this is a single numeric, it won't take array, so that is why it is showing the error that data mismatch है. Okay, why it is happening? So ये array कैसे generate कर रहा है? We know कि यहाँ पे तो 10 था और यहाँ पे 11 था, तो यहाँ 22 आना चाहिए. 22 सिंगल नंबर है, वो एरे थोड़ी हुआ. एरे वुड बी लाइक कि अगर मैं मल्टीपल नंबर उसमें हो, लाइक 10 23 एक साथ यहाँ पे लाइन पे आ रहे हो सारे, वो एरे होगा, बट ये एरे थोड़ी है 22. सो फॉर लूप, हाँ, फॉर लूप में एक और फंक्शन होता है विच वी कॉल ऑटो इंडेक्सिंग. ओके, ऑटो इंडेक्सिंग में क्या होता है, ये लाइक अब लेट्स से मैं ये लूप रन करता हूँ, तो इन फर्स्ट आइटरेशन ये ए और बी को रीड करेगा 10 और 11, तो यहाँ पे ऐड करके वैल्यूज देगा 22. ठीक है, देन नेक्स्ट लूप में भी सेम वही इनपुट वैल्यू है, तो ये वही वैल्यू एज इट इज आता जाएगा 22. तो हर लूप में 22 ये जनरेट करता जाएगा. ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा कि जितने भी हर आइटरेशन में जो भी इस लाइन पर वैल्यू आई है उन सबको एक साथ कंबाइन करेगा और एक एरे में डाल देगा. ओके, सो दैट वाज द इशू है, ये एरे बना देगा यहाँ पे सबका. व्हाट आई विल डू, लेट मी जस्ट क्रिएट वन इंडिकेटर जो कि एरे दिखा देगा. ठीक है, ये एरे. तो अब हमें पता है इनपुट चेंज नहीं कर रहा है इस केस में, तो 5 बार यहाँ पे 22 का वैल्यू आएगा अगर ये एरे जनरेट करता है तो. ठीक है, लेट अस डिस्कनेक्ट दिस वन फॉर टाइमिंग. इसने 5 बार 22 दे दिया. ओके, सो व्हाट इट इज डूइंग कि इस पॉइंट पे जो भी डेटा आ रहा है उसको ये इकट्ठा कर रहा है और लास्ट में एक एरे बना के आउट कर रहा है. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑटो इंडेक्सिंग. सेम केस यहाँ भी हो रहा है. ठीक है, यहाँ भी आपका एरे ही आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी आपका इनपुट चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन 167 ओनली. Let us just see this one also. You see 167 आ गया. अब फर्स्ट आप देखेंगे -1 आया. कैन एनीवन टेल कि -1 क्यों आया? फर्स्ट -1 है, बाकी सारा 167 है. Why? सर स्टार्टिंग में वैल्यू 0 थी, उसके बाद उसका -1 हुआ. बिल्कुल
क्योंकि यहाँ पे जो ये शिफ्ट रजिस्टर था इसमें कुछ वैल्यू नहीं था पहले, तो डिफॉल्ट सर वैल्यू फर्स्ट 0 हुआ। इनपुट ही हमने तो 0 -1 दिया इसने फर्स्ट आइट्रेशन में, और फर्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पे आया 168, तो इसने यहाँ पे सेंड करा 168, फिर 167 में कन्वर्ट हो गया वो, बट इनिशियली तो यहाँ 0 था, तो 0 -1 आ गया आगे। ठीक है, तो ये इशू था, आई थिंक आप में से एक स्टूडेंट ने पूछा भी था ये, तो दिस वाज द इशू। बट लेट्स से अगर मुझे ये ऑप्शन नहीं चाहिए कि एरे बना के दे, मुझे चाहिए कि लास्ट जो वैल्यू मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस नोड पे राइट क्लिक करेंगे, इसी मोड टनल मोड, ओके, टनल मोड इज लास्ट वैल्यू इंडेक्सिंग कंडीशनल कंकैटिनेटिंग। सो राइट नाउ लास्ट वैल्यू हम लोग अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए अब इसने एरर दिखा दिया, और एरर क्या है कि इनपुट सिंगल नंबर आ रहा है और आगे हमारा एरे है। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट करके यहाँ कनेक्ट कर दूंगा। एक डिफरेंस आप विजुअल भी देख सकते हैं कि ये आपका सॉलिड ऑरेंज है ये वाला बॉक्स, और ये वाला सॉलिड ऑरेंज नहीं है, सो विच मीन्स ये इंडेक्सिंग कर रहा है, और दैट मतलब ये एरे बना रहा है इस पर। ठीक है, और इसमें और ऑप्शन थे कुछ, आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। लेट्स से हमने दो ऑप्शन देख लिए, लास्ट वैल्यू और इंडेक्सिंग, एक है कंडीशनल और एक है कंकैटिनेट। तो इसमें क्या करता है, ये सारे वैल्यू एक साथ ऐड लगाता जाएगा। कंकैटिनेट मतलब एक के पीछे एक करके लगाता जाएगा। Okay, so one thing is कंडीशनल। कंडीशनल टर्मिनल में क्या होगा कि ये इसको कंडीशन पे आउट करेगा, मतलब लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन दूंगा तभी ये डेटा आउट होगा। जैसे हमारा वाइल लूप में स्टॉप कंडीशन होता है ना, सिमिलरली अगर वो कंडीशन यहाँ पे मिलेगा तो ये डेटा आउट करेगा, अदरवाइज ये डेटा आउट नहीं करेगा। तो दैट इज ऑल्सो यू कैन सी। तो आप लेट्स से आपने वी डिज़ाइन करा है कि अगर इस फंक्शन का जो आउटपुट है इफ दैट इज ग्रेटर देन 10 देन ओनली आई वांट टू सी इट, अगर 10 से कम है तो आई डोंट वांट टू सी इट। तो यू कैन पुट अ कंडीशन हेयर कि इफ इट इज ग्रेटर देन 10 then only you basically output that data, otherwise you don't. So that can be done. So this is another terminal, and that condition we can give here. Condition again is boolean only because it will be true or false. So any doubt on this? Now there is one more aspect to indexing. लाइक अगर मैं लेट्स से यहाँ पे n नहीं देता, तो n देखिए अभी क्या एरो ब्रोकन है मेरा, और एरर क्या दे रहा है कि n इज नॉट वायर्ड, मतलब मैंने डिफाइन नहीं करा है कि कितने टाइम लूप रन करेगा। तो लेट्स से अगर मैं एक एरे लेता हूँ लाइक दिस एरे, तो यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं इसे, और ये इंडिकेटर है अभी, तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ कंट्रोल पे। ठीक है, ये एरे मैं इस पे लगाता हूँ यहाँ पे इनपुट पे। ठीक है, अब देखिए आपका ब्रोकन एरो जो था वो सही हो गया। वाई? तो ये भी एक ऑटो इंडेक्सिंग का हमारा बेनिफिट है कि अगर मैंने कोई एरे इनपुट दे रखा है इस पे, तो उस पर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये उतनी बार ही रन करेगा। तो उस केस में अगर मैं n लगाता हूँ तो मतलब n हम नहीं ना लगाएं तो भी चलेगा। ठीक है, तो होगा क्या है कि जैसे अब इसके आगे देखिए, ये अगर फंक्शन को मैं कहीं पे इनपुट देता हूँ, जैसे यहाँ पे, तो ये देखिए मेरा एरे था, और यहाँ पे ये देखिए डिफरेंस देखिए, सिंगल ये थिन वायर है, दैट मीन्स नंबर आ रहा है, एरे नहीं आ रहा। तो इससे व्हाट डज इट मीन दैट इन एवरी आइट्रेशन, लाइक आइट्रेशन i इक्वल्स टू 0 पे इट वुड टेक 0 एलिमेंट -1, और ये उसको अंदर कर देगा लूप में, और उस -1 होके यहाँ पे आ जाएगा -2। लेट अस गिव वन indicator here also. Okay, now let us try to run it and see if what data is coming, and then we will try to analyze the data. Let me just run it once. Okay, okay, so now you see, so हमारा इनपुट था फर्स्ट के आइट्रेशन में -1, तो -1 अंदर गया, -1 -1 -2 हो गया,
which is coming here. Okay, so next iteration में 167 आया, 167 minus 1 166 पहुंच गया, तो बाकी सारे आइट्रेशन हमारे 167 ही है, तो सबका आंसर 166 आएगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो देयर. सो ऑटो इंडेक्सिंग में क्या होता है, जब इनपुट साइड पे जितना भी मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर एरे में, दैट वुड बी माय number of iteration for loop. Okay, and then in every iteration it will input one element only. Okay, and at the output end what would happen, that it will this tunnel would collect all the inputs coming in all the different iterations, and then at the end it will make an array and give it output, basically output it on this array. Okay, so this is what our auto indexing means. Any doubts in this? Should we move forward? सर ये भी ऑटो इंडेक्स में आपने बताया, इसको दोबारा बताना, ये कहाँ पर कंफ्यूजिंग है सर. आपने दो एरे बनाए थे ना, वो एक बार 167 लिए, देखो एक एरे मेरे पास ये इनपुट एरे है. ठीक है, इनपुट एरे मैंने दे रखा है जिसमें हमारे पास 5 एलिमेंट है. फर्स्ट एलिमेंट इज -1, then 167, let's say, then I put 55, then I put -85, then I put let's say 32. तो ये मेरा इनपुट एरे है. मैंने अभी देखो यहाँ पे n डिफाइन नहीं करा हुआ है, तो बट मैंने ये अपना एरे डिफाइन कर दिया यहाँ पे. तो ऑटो इंडेक्सिंग में क्या होगा कि ये यहाँ पे जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट है इस एरे के अंदर उतनी नंबर ऑफ टाइम्स रन करेगा. तो इस केस में मुझे n का ज़रूरत नहीं है सबसे पहले, क्योंकि ये n यहाँ से कैलकुलेट कर लेगा कि इसके पास ओके 5 एलिमेंट है तो 5 टाइम रन करना है. तो क्या अगर मैं इसमें 10 एलिमेंट कर देता हूँ तो ये 10 बार रन करेगा. ओके, सो नाउ सेकेंड थिंग इज कि ये पूरा एरे था, बट जब इनपुट ये लूप के अंदर आ रहा है तो ये सिंगल थिन वायर हो जा रहा है. दैट मीन्स इट इज कन्वर्टिंग इट टू अ नंबर. आगे नंबर आ रहा है बस, नॉट कंप्लीट एरे. सो लेट्स से इसका इंडेक्स जो है अभी आइटरेशन नंबर 0 है, तो ये एलिमेंट नंबर 0 भेजेगा आगे, और फर्स्ट आइटरेशन में ये फर्स्ट एलिमेंट भेजेगा, सेकंड में सेकंड भेजेगा. तो इट वोंट टेक कंप्लीट एरे इनसाइड एट अ सिंगल गो, इट इज टेकिंग वन एलिमेंट एट अ टाइम. ओके, दिस इज ऑटो इंडेक्सिंग. ओके, सो सिमिलरली हमने जब इसे रन करके देखा, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट डूइंग -1 विद दिस कंप्लीट एरे, वन एट अ टाइम. ये देखिए इसमें हो क्या रहा है, एलिमेंट रीड करा, -1 करा और एलिमेंट को यहाँ डाल दिया. फिर एट दी एंड ये इसने जितने भी एलिमेंट कलेक्ट करे हैं सबको आउटपुट कर देगा एरे 3 पे. तो अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो बस एक डिक्रीमेंट हो रखा है सब में. क्लियर अब? सर अगर मैं इनपुट एरे को इसके अंदर डाल दूँ, लूप के अंदर डाल दूँ, तो ये सारा एक बार में हो जाएगा? हाँ, मतलब लूप के बाहर से भी आप एक बारी में कर सकते हैं. जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, राइट क्लिक करके अगर मुझे लास्ट वैल्यू रीड करना था तो मैं लास्ट वैल्यू सेलेक्ट कर रहा था, है ना. सिमिलरली वहाँ पे भी कर सकता हूँ मैं. जैसे अभी इसको राइट क्लिक करके इंडेक्सिंग कर दिया मैंने ओपन. ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके डिसेबल इंडेक्सिंग, तो मेरा कंप्लीट एरे एक बारी में चला गया. देखो अब वो वायर चेंज हो गया ना अंदर -1 का. ठीक है, और यहाँ पे अब इसको मैं कर देता हूँ लास्ट वैल्यू, तो अब ये देखो कंप्लीट एरे एक बारी में आ जाएगा. तो दैट इज अप टू यू. ठीक है, तो इस ऑटो इंडेक्सिंग का यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि मेरे को n लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा इस केस में. ठीक है, एनी डाउट्स? Should we move forward? Yes, sir. Okay, so let me just close this one. Okay, so arrays are structure which basically consist of same data type. Okay, let's say I have one data type. I want to basically bundle different data type together. Then what can I do? कि एरे में तो ये है कि जैसे अगर मैंने इनिशियलाइज कर दिया उसे स्ट्रिंग पे, तो आई कैन ऐड ओनली स्ट्रिंग इनसाइड. बट लेट्स से आई वांट अ स्ट्रक्चर जिसके अंदर आई कैन पुट स्ट्रिंग, बूलियन, इंटीजर, एवरीथिंग टुगेदर. देन व्हाट वुड आई डू? बिकॉज विल एरे वर्क देयर?
Maybe sir. Array will not work in that case. Okay, so we use something called cluster there. Okay, so how to use cluster? Let me just right click here, and in the same palette you see there's cluster also. Okay, if I click here, put it here, so again it is also black, so it is also polymorphic in nature. Okay, so I was saying that if I want to add multiple different data types, let's say I take floating point number, let me put it here. Let's say I take boolean also. Okay, now let's say let me put, let's say string also. Okay, I can put file path also, which is a separate data type. Okay, then maybe I can put what else was there, waveform. Okay, let us just work with this. Okay, so this is now you see we can add all these things inside a structure. Okay, so it can now single-handedly use this. We can use this single block now to basically transport these 4 different values. Okay, now you would ask what is the benefit of this particular structure. So I can just communicate value of these all 4 things separately. Now why would I need to bundle it? Okay, so one thing is like there is this terminal. Okay, this icon pane we did first day. Okay, so if I see the patterns, you see this is the maximum number of pins terminals I can select. So but let's say my number of terminals are increasing, are basically more than this. So I can, let's say if I want to connect this here, you see now with a single terminal I can transport 4 variables. Okay, so if I take this here, you see सिंगल टर्मिनल से ही हमारे पास 4 वेरिएबल आ जाएंगे यहाँ पे. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग दैट इफ आई एम यूजिंग अ सब वी आई, तो वहाँ पे एक ही टर्मिनल के थ्रू मैं मल्टीपल डेटा भेज सकता हूँ. ओके, देन देयर विल बी कंडीशंस. सेकेंडली देयर विल बी कंडीशंस जहाँ पे हमें मल्टीपल डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप्स को एक साथ हमें बंडल भी करना पड़ेगा. ठीक है, अब जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास एक पर्टिकुलर कोई वी आई है जो कि 4 आउटपुट दे रहा है मुझे. ठीक है, और वो वी आई 100 टाइम्स रन कर रहा है और हर बारी डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट मुझे दे रहा है, और वो आउटपुट सब ये वाला है जो हमने इसमें डाला हुआ. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक एन एरे ऑफ दिस क्लस्टर ऑल्सो. सो लाइक हमने एरे बनाया था नॉर्मल नंबर्स वगैरह का. वी कैन मेक एन एरे ऑफ दिस नंबर ऑल्सो, completely this cluster also. So अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मल्टीपल डेटा जो मेरे हैं मल्टीपल टाइम, अगर लेट से कोई वी आई सेम वैल्यूज क्लस्टर का मुझे दे रहा है, तो मैं उसे सबको रिकॉर्ड कर सकता हूँ एक ही जगह पे. ठीक है, लाइक आई कैन गिव एनीथिंग हियर, समथिंग हियर, सम वैल्यूज हियर, then I can on it. So this is an array of a cluster. Okay, so all the elements are clustered here, and every element will contain 4 values, which will be these. So now if I see array also, we have some functions here that we can cluster to array. Let me just take this out once. Let me make another cluster.
So anyway, I will show you this. Then same array functions can be used here also. Let's say I can connect here, and I give, let's say, put it on inside one while loop. Add a stop button. Give it some timing. Okay, then right now there are only 2 elements in this array, not constant. Create one control. Then here we will create an indicator. So you see it read the type of element. We know that every single element in this array is a cluster, and that cluster contains a numeric, boolean, string, and path. So if I run this program now, you see this was my first element. Like boolean is 0, numeric is 0, string is GSF, GF, then path is nothing. So if I add some path here, it will copy it here. If I switch it on, you can see that if I change the index, it would be my next element like this one. So this basically is a cluster, and this whole thing is array of cluster. Okay, so now there are 2 things you have to see. Like if I make an array, let's say, sorry, not an array, a cluster. Let's delete this one. Take one cluster, put it here. Okay, now let's say if I take a control, I can put it here. Now let me take an LED. You see, there is one issue, like this LED is basically an indicator. Okay, so if I try to put it inside, it will basically change it to a, okay, this is not showing. 1 second, let me just explain it. So in array, inside an array, you can just add either controls or indicators. That is the only rule. You can add any sort of different data types inside it, that won't matter. You can add numeric, integer, boolean, waveform, dynamic data, string, path, anything, but all has to be either control or indicator. Okay, let's say right now you see if my LED is basically an indicator. Okay, and this basically is a control. Okay, so if I try to add it, inside this, if I, let's say, try to add one LED, okay, so what it will do, it will automatically convert it to a control. Now let's say if I try to take out, you see this is the LED that we just took out, and the terminal is coming out, which means it is a control, not an indicator. So it basically changed it. So the rule is, inside a cluster, everything can be control or indicator. Okay, you cannot have combination of both. Okay, so either it would be a control cluster or indicator cluster, nothing else. Okay, so this is one thing. Now second thing that you saw, that we can make array of cluster. Yes, you can make array of cluster, but can we make cluster of array? We cannot. You see, this is showing cross. Okay, so the difference is, we can make array of cluster, but we cannot make cluster of arrays. So that means we cannot add input array here. Okay, so that is another thing. So 2 things, it can cluster can be either controls or indicators only, or we cannot create array of cluster of array. We can create array of cluster, which basically we are seeing here, but we cannot add array inside it. Okay,
So that we also saw that it was showing crosshair. So any doubt in this? Any doubts? No doubts? Sir, I think cluster is like a stature of in C language. क्या एक बार रिपीट करेंगे आप क्या कह रहे हैं? सर जो क्लस्टर है वो सी में जो स्ट्रक्चर होता है लाइक उस टाइप का है. हाँ कुछ वैसे कह सकते हैं आप. मतलब इट इज अ स्ट्रक्चर जहाँ पे आपको मल्टीपल चीजें बंडल करनी हो एक बारी में, Yes, अलग sir. अलग टाइप की, नॉट सेम टाइप की. Yeah. तो लेट्स से अभी हम देखते हैं थोड़ा क्लस्टर का मैनिपुलेशन. लाइक हमने एरे का मैनिपुलेशन तो देखा था. नाउ हाउ वी कैन ओके. सो इसको अगर लेट्स से मुझे मैनिपुलेट करना है तो एक फंक्शन है यहाँ पे क्लस्टर में आके अनबंडल. लाइक अभी मैंने क्या करा, अभी मैंने बंडल कर दिया इन 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक क्लस्टर के अंदर. ठीक है. अब लेट्स से मुझे इस स्ट्रिंग को चेंज करना है. ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा अनबंडल. तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम पे है अनबंडल. ठीक है. इस अनबंडल पे मैं ये कलेक्ट करता हूँ. इसने देखो अपने आप 4 इनपुट दे दिए मुझे. एक आपका देखो न्यूमेरिक है, एक आपका बूलियन है, देन एक स्ट्रिंग है और एक पाथ है. ठीक है. अब लेट्स से मुझे स्ट्रिंग को चेंज करना है. ओके. स्ट्रिंग को लेट्स से स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पे. सर एक डाउट है. हाँ बोलो. सर ये पाथ थोड़ा डिफाइन करेंगे क्या होता है? क्या पाथ पाथ को क्या करना है बताओ. मतलब बताएंगे क्या होता है सर ये? पाथ बेसिकली लेट्स से मैं अपनी लैब व्यू प्रोग्राम में आई एम वर्किंग विद सम फाइल. ओके. वो फाइल कोई इमेज फाइल या एक्सेल फाइल हो सकता है जहाँ से लेट्स से मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, या फिर लेट्स से एक फाइल हो सकता है जहाँ मैं डेटा राइट कर रहा हूँ. एक ऑडियो फाइल भी हो सकता है जिसमें मैं कुछ प्रोसेसिंग रन कर रहा हूँ. ठीक है. तो वो उस फाइल का पाथ है ये. जैसे देखो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो इसने देखो ये ओपन कर दिया पाथ वाला विंडो. तो लेट्स से आई सेलेक्ट, यहाँ पे मेरे पास एक ये ऑडियो फाइल है, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ. तो ये अब फाइल क्या करेगा, इसका जो पाथ अगर लेट्स से इसके आगे मैं कोई फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ जो कि फिल्टर करेगा इस पर्टिकुलर वेव को, तो उसको ऑब्वियसली उस फाइल का पहले पाथ चाहिए होगा कि कौन सा ऑडियो फाइल रीड करना है और फिर उसके ऊपर वो अपना फंक्शन अप्लाई करेगा. तो उसके लिए हम ये पाथ देते हैं. ओके सर. ठीक है. तो अब हम क्या कर रहे थे, इसको क्लस्टर को मैनिपुलेट कर रहे थे. जैसे क्लस्टर जैसे ही मैंने इस पर देखो बंडल कनेक्ट किया तो इसके अंदर 4 एलिमेंट थे, इसने चारों मुझे दिखा दिए यहाँ पे आगे. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, मुझे स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना है. मैं स्ट्रिंग फंक्शन लेता हूँ कुछ. लेट्स से मैं एक कांस्टेंट स्ट्रिंग लेता हूँ और जैसे भी मैंने स्ट्रिंग इनपुट दे रखा है देवेंद्र, लेट्स से मैं मेरे को उसे चेंज करना है धवन. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लूँगा स्ट्रिंग जिसमें धवन ऐड कर दिया मैंने. देन आई विल टेक दिस बंडल क्लस्टर. ठीक है. बंडल और एंटी अनबंडल बिल्कुल अपोजिट है. ठीक है. अब मैं क्या करता हूँ, इसको 4 टर्मिनल्स हैं. मुझे DBL पे कोई चेंज नहीं करना अपने न्यूमेरिक पे, तो वो एज इट इज चला जाएगा. मुझे अपना बूलन पे भी कोई चेंज नहीं करना, मुझे पाथ पे भी कोई चेंज नहीं करना. मुझे जो चेंज करना है, मुझे
स्ट्रिंग पे करना है। ठीक है, अब मैं आगे इंडिकेटर लगा देता हूँ इसको। ठीक है, अगर मैं अपने फंक्शन रन करता हूँ तो ये देखो, ये वही आ गया सेम नंबर, बुलन भी सेम आ गया, स्ट्रिंग बस हमने चेंज करके यहाँ कर दिया। तो इस तरीके से हम क्लस्टर को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो क्लस्टर को जब भी मैनिपुलेट करना होगा, हम पहले उसे ओपन करेंगे, अनबंडल करेंगे, फिर जो भी हमें एलिमेंट चेंज करना है उसे बंडल करेंगे, और फिर उसे वापस बंडल करके वापस क्लस्टर बना देंगे। तो दिस इज़ व्हाट वी विल डू। तो लेट्स से एक छोटा सा एक्सरसाइज करके देखते हैं हम एरे ऑफ बंडल, एरे ऑफ क्लस्टर के साथ। तो उसमें हमारा एरे और क्लस्टर दोनों का काम होगा। ये तो मैंने एरे बनाया, तो लेट्स इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। ठीक है, ये हमने बना दिया अपना एरे ऑफ क्लस्टर। अब लेट्स से मैं इसके अंदर 3 एलिमेंट दे देता हूँ। ठीक है, तो एक मैं करता हूँ स्ट्रिंग p, यहाँ पे हम डाल देते हैं स्ट्रिंग 2, यहाँ डालते हैं स्ट्रिंग 1। ठीक है, ये ऑन ऑफ और ऑन, नंबर यहाँ देते हैं हम लोग लेट्स से 1 2 और यहाँ पे देते हैं 3। ठीक है, फाइल पाथ यहाँ पे इसका दे देते हैं, यहाँ पे लेट्स से इस vi का दे देते हैं, यहाँ पे लेट्स से इसका दे देते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास एक एरे है जो कि 3 एलिमेंट वाला है, और वो तीनों एलिमेंट क्लस्टर हैं। ठीक है, सेम टाइप की। तो अब मेरे को क्या करना है, मुझे ये जो स्ट्रिंग 2 है, इस स्ट्रिंग 2 की जगह मुझे अपना नाम डालना है। ठीक है, और इस बुलन को थर्ड वाले एलिमेंट में चेंज करना है, मतलब जो भी है लेट्स से प्लस माइनस जो भी है उसे इन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मुझे अपने वो सेलेक्ट करने हैं। मुझे पता है कि मेरा काम जो है इंडेक्स नंबर 1 पे और इंडेक्स नंबर 2 पे है, तो मैं इंडेक्स फंक्शन यूज़ करूँगा, क्लस्टर अटैच कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है कि मेरे को काम है अपना इंडेक्स नंबर 1 पे। ठीक है, और अगर इंडेक्स 2 पे तो आप कहेंगे कि सेम फंक्शन फिर से यूज़ करना पड़ेगा, वो नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा यहाँ से एक्सपेंड कर देते हैं। मैं एक और इंडेक्स मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे नीचे, इस पे इंडेक्स 2। तो अब यहाँ आउटपुट पे आप देखेंगे तो मुझे 2 इनपुट दिखा रहा है। ठीक है, तो एलिमेंट दोनों के मुझे निकाल के यहाँ दिखा देगा। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए अनबंडल। ठीक है, तो मैं अपना एलिमेंट नंबर 1 लेता हूँ। ठीक है, इसने देखो चारों डाटा दिखा दिया मुझे। मुझे इसमें क्या चेंज करना था, मुझे स्ट्रिंग 2 की जगह लिखना था अपना नाम। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रिंग कांस्टेंट लेता हूँ, अब यहाँ पे उसमें डाल देता हूँ अपना नाम। ठीक है, और बाकी मुझे कुछ चेंज नहीं और हाँ, इसमें और कुछ चेंज नहीं करना था मुझे। तो मैं क्या करूँगा, इसको वापस बंडल कर दूंगा। ठीक है, बाकी चीज़ें यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने रेफरेंस दे दिया इसको यहाँ पे, ये वाला जो टर्मिनल था, तो इसको अपने आप पता लग गया कि जो बंडल करना है वहाँ 4 डेटा टाइप चाहिए मुझे। ठीक है, अदरवाइज मेरे को क्या करना पड़ता है, चारों को ट्रैक करके अपने आप कनेक्ट करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो बूलन मेरा एज इट इज कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रिंग को मैंने रिप्लेस कर दिया अपने नाम से। ठीक है, अब तो ये मेरे पास एरे आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, दूसरे वाले को
दूसरे वाले में भी कुछ चेंज करना था, तो अगेन मुझे एक अनबंडल फंक्शन चाहिए। तो इस वाले एरे को क्लस्टर को निकालते हैं, सेम आ गया। इसमें मुझे क्या चेंज करना था, जो भी इसका बूलन का वैल्यू है उसको नेगेटिव, मतलब उसको इन्वर्ट करना था। तो बूलन फंक्शन है ये। बूलन में मैं नॉट गेट ले लेता हूँ यहाँ पे। नॉट गेट क्या करेगा, उसको इन्वर्ट कर देगा, बाकी सब एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, तो अगेन एक बंडल फंक्शन लेते हैं, बंडल को यहाँ लगाते हैं। रेफरेंस में ये वाला दे देता हूँ ताकि इसे पता चल जाए अपने आप। देन बूलन मेरा ये कनेक्ट हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज। अब मुझे क्या करना है, मैंने अपने एरे चेंज कर लिया, क्लस्टर चेंज कर लिया। अब मुझे एरे को कंबाइन करना है वापस। ठीक है, क्योंकि मैंने एरे में से 2 एलिमेंट निकाले सबसे पहले, उनको मैनिपुलेट करा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को वापस एरे में डालना है। ठीक है, तो एरे फंक्शन मैं यूज़ करूँगा रिप्लेस एरे करके। ठीक है, तो इसमें मेरा मेन एरे कौन सा था, मैं वो कनेक्ट कर देता हूँ, इसका रेफरेंस देते हैं। ठीक है, इस एरे में मुझे क्या रिप्लेस करना है, इंडेक्स नंबर मुझे करना है 1 रिप्लेस, इस 1 से कनेक्ट करता हूँ। और एक मुझे रिप्लेस करना है इंडेक्स नंबर 2, तो यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इंडेक्स 1 को रिप्लेस मुझे किससे करना है, इससे। इसको यहाँ पे लाते हैं वहाँ से। ये वाला है हमारा, ठीक है, और ये वाला है हमारा सेकंड वाला इंडेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, अपना क्रिएट इंडिकेटर कर देते हैं, तो ये आ गया हमारा। अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखो, तो 1 एज इट इज रहा, बूलन सेम है, स्ट्रिंग 1 सेम है, पाथ भी सेम है। मुझे फर्स्ट में कोई डिफरेंस नहीं किया हमने। यहाँ स्ट्रिंग 2 का मेरा बन गया देवेंद्र, और यहाँ पे इसका पॉजिटिव का हो गया, सॉरी ट्रू का हो गया फॉल्स। ठीक है, तो ये प्रोग्राम से हमने क्लस्टर भी मैनिपुलेट कर लिया अपना, और एरे भी मैनिपुलेट कर लिया। इसमें कोई डाउट? Any doubt in this? No, sir. Okay, so if there's no doubt, we can stop for today. We were supposed to learn this array and cluster सर today. सर Yeah. सर एक मिनट सर, आपने यहाँ पर ना एक बार आपने एरे को चेंज किया, मतलब अपना नाम एक बार बुलंद चेंज किया, तो जी। दोनों को चेंज करने के लिए आपने 2 अलग अलग तरह से, तो हम एक ही साथ चेंज कर सकते, एक ही बंडल से। एक ही बंडल से? हाँ। एक ही बंडल तो, लेकिन वो तो अनबंडल तो एक ही को करेगा ना, वो एक क्लस्टर को अनबंडल करेगा, 2 को नहीं करेगा। सर सो एक ही को एक बार में सिर्फ एक ही को अनबंडल करता है। हाँ, अनबंडल और जो बंडल फंक्शन है आपके, ये एक ही क्लस्टर के साथ वर्क करते हैं। ठीक है, इधर आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि सर आइए यहाँ पे हमने 2 क्यों यूज करे, दोनों हम यहाँ पे एक यूज कर सकते थे, है ना। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इंस्टेड ऑफ दिस हम एक फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप के अंदर हम इसमें इनपुट चेंज कर देंगे दोनों क्लस्टर के, और हमारा फंक्शन अंदर एक ही रहेगा, बंडल और अनबंडल। बट उसमें हम करेंगे क्या, अपना इंडेक्स चेंज कर देंगे और अकॉर्डिंगली अपना आउटपुट चेंज कर सकते हैं। तो फॉर लूप के अंदर हम वो काम कर सकते हैं जो आप कह रहे हो, उसमें हमारा सिंगल यूज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ, आप लोग ये करके दिखाएंगे। यहाँ पे जैसे मैंने अभी 2 बंडल और 2 अनबंडल यूज करे हैं, आप लोगों का टास्क है सेम एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करना है, बट 1 बंडल और 1 अनबंडल यूज करना है। उसके अंदर फॉर लूप यूज होगा। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। ठीक है, वो डिजाइन कैसे करना है, ये आपका एक्सरसाइज है आज, नोट डाउन कर लो इसको। So that's all for today, I Yes, suppose. ma'am. Devendra. Yes, ma'am.
Okay, so now today is day 4. Yes. So tomorrow we will be meeting at 3:25. Yes, ma'am. It's okay. I suppose सबने अच्छे से exercises किए हैं आज. So beta, please do your homework or the revision which sir has told. So next day we will start with the revision and we will continue with the session. Yes. Okay. Thank you, Devendra. Thanks for this lovely Thank you, session. ma'am. Thank you, ma'am. So see you tomorrow at Okay, ma'am. 3:25. Sure, ma'am. Okay. Bye. Okay. Bye.